وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. آج 7 رمضان ہے اور ہم 7ویں سپارے سے ہی آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. مختلف ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں حلال چیزوں کو حرام کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسی چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، صوفی قسم کے لوگ ان سے عملاً پرہیز کرتے ہیں، جیسے نکاح سے پرہیز کرنا، تاکہ اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سے بچ کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو بچا لیا جائے. صحابہ میں بھی اس طرح کا رجحان تھا. حضرت عثمان بن مظعون نے حضرت علی نے کہا تھا کہ میں ساری رات جاگا کروں گا، اور حضرت عثمان بن مظعون نے کہا تھا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح کرنے سے منع فرما دیا تھا. حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے کی ایک صورت یہ ہے کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے بھی انسان کم کھائے یا اپنی مرغوب اشیاء سے پرہیز کرے. یہ چیز بھی صوفی حضرات میں پائی جاتی ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ نفس کو جتنا زیادہ کچلا جائے اتنی زیادہ روح طاقتور ہوگی. ایسی رہبانیت بھی ہمارے دین کے خلاف. اسی طرح حد سے بڑھنے کی ایک اور صورت بسیار خوری ہے. جیسے اللہ کا حکم ہے کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، تو اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے. ظاہر ہے جو شخص ان باتوں میں مبتلا ہوگا وہ دوسروں کے حقوق کا خیال کم رکھے گا. نیز بسیار خوری سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اعتدال پر قائم نہیں رہتا. چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ چیز تو حلال ہو مگر اپنی حرام کمائی کے ذریعے انسان اس کو حرام بنا لے، جیسے چوری
डाका, खयानत, सूद और दीगर नाजायज राय से हासिल किया हुआ माल। तो लिहाजा जैसे हलाल को हराम करना भी गुनाह है, इसी तरह हराम अशिया को हलाल कर लेना भी गुनाह है, और इसी तरह हलाल अशिया को हराम कर लेना भी गुनाह है। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें रिज़्क दिया है उसमें हलाल और पाकीज़ा रिज़्क खाओ, अल्लाह से तकवा रखो, वो ज़ात जिस पर तुम ईमान लाते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी लगव कस्मों के सिलसिले में तुम्हारा मुआखज़ा नहीं करता, लेकिन उस चीज का मुआखज़ा करता है जो तुमने जानबूझकर कस्में खाई। अरब लोगों में आदत थी बात बात पर कसम खाते। आज भी अरबों से आप हाल पूछें, सुनाओ कैसे हो, जवाब मिलेगा वल्लाह बिखैर, अल्लाह की कसम बेहतर। तो अरब लोग बात बात पर कसम खाया करते थे, सोचे समझे बगैर। हमारे यहाँ भी बात लोगों को आपने देखा होगा, उनकी आदत होती है हर बात पे कहते हैं ईमान से। उनसे पूछे आओ भी खाना खा लो, ईमान से खाकर आए। तो ये जो लगव कस्में हैं इन पर अल्लाह मुआखज़ा नहीं करता। हाँ, किन कस्मों पर मुआवजा करता है? जो इंसान जानबूझकर अपनी नियत के साथ खाए। तो ऐसी कसम इंसान खा ले और फिर इंसान ये समझे कि किसी और काम में बेहतरी है, तो फिर उसे ऐसी कसम तोड़ देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने कसम खा ली, मैं अपने फला रिश्तेदार के घर नहीं आऊंगा। एक खामिन ने कसम खा ली, मैं बीवी के कमरे में नहीं आऊंगा। तो ऐसी कस्में जो हैं उनको तोड़ देना ही बेहतर है। कुरान मजीद ने हमें हुक्म दिया है, कद फरज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता ईमानिकुम, अल्लाह ताला ने ऐसी कस्में खाने को तुम्हारे ऊपर, ऐसी कस्में तोड़ने को तुम्हारे लिए फर्ज करार दे दिया है। तो ऐसी कस्में अगर तोड़नी पड़ जाएं और इंसान को अगर एहसास हो कि मैंने जो कसम खाई है गलत खाई है, तो उसको ऐसी कसम को लाजमन तोड़ देना चाहिए। तो फिर उसका कफारा ये होगा, उसका कफारा 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, औसत दर्जे का, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़े पहनाना है, या एक गुलाम आजाद करना है। अब किसी शख्स ने इस तरह की कसम खा ली और उसको वो उसे तोड़ना चाहता है, तो उसका कफारा कुरान मजीद हमें बड़ी क्लियर बता रहा है, 10 आदमियों को वैसा खाना खिलाए जैसा अपने घर वालों को खिलाता है, और या 10 आदमियों के कपड़े पहना दे, या 3 रोजे रख ले, या एक गुलाम आजाद कर दे। तो ऐसी कसम का कफारा ये है कि वो 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे उस औसत दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहना दे, या गुलाम आजाद कर दे। तो जो कोई ये ना पाए, गुलाम आजाद न कर सके, तो वो, या पिछले काम न कर सके, तो वो 3 दिनों के रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है। जब तुम हलफ उठाओ और अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। कस्मों की हिफाजत करने से क्या मुराद है? जब भी इंसान कसम खाए तो सोच समझ कर खाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न अपने बापों की कसम खाओ, न माओं की, न शरीकों की, और अल्लाह की कसम भी उस वक्त खाओ जब तुम सच्चे हो। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई उसने शिरक किया। तो लिहाजा इंसान कसम सोच समझ कर खाए, और जब खा ले फिर अपनी कसम का पहरा दे, उसकी हिफाजत, क्योंकि उसने जिस अजीम जात को अपने साथ गवाह ठहराया है, उस अजीम जात की अजमत इस बात का तकाजा करती है कि वो अल्लाह के नाम को सोच समझ कर इस्तेमाल करे, और अगर उसने ये कसम खा ली तो फिर अपनी कसम का आखिरी हद तक उस कसम को पूरा करे और अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, शराब और जुआ और थान और जुए के तीर नापाक हैं, वो शैतानी अमल हैं, इनसे बच जाओ ताकि तुम फलाह पाओ। पीछे सूरह बकरा में भी हम शराब और जुए के बारे में पढ़ चुके। सूरह निसा में हमने पढ़ा था कि तुम नमाज के करीब न जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। अब ये सूरह माइदा में तीसरा हुक्म आ गया है जिसमें शराब की हुर्मत का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या शराब बतौर दवा इस्तेमाल हो सकती है? आपने फरमाया, शराब तो खुद बीमारी है, हराम चीजें खुद
उनकी हुर्मत की वजह ही उनके नुकसानात होते हैं। आपने फरमाया शराब तो खुद बीमारी है, ये शिफा क्या देगी। ये तिरमिज़ी की हदीस है। इसके अलावा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशा आवर चीज हराम है, खा वो शराब हो, खा वो हेरोइन हो या कोई और लिक्विड या सॉलिड किस्म हो, जो चीज भी नशा पैदा करे वो हराम होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस चीज की ज्यादा मिकदार हराम हो उसकी कलील मिकदार भी हराम है। ये ना समझिए कि एक शराब का कतरा फलां दवाई में पड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कलील मिकदार भी हराम है अगर उसकी कसीर मिकदार हराम है तो। इसी तरह शराब दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। हमारी बहुत सी दवाइयों में अल्कोहल या शराब की और किस्में पड़ी होती हैं, तो ये याद रखिएगा वो भी हमारे लिए जायज नहीं है। मैसर वो कसीर माल या दौलत जो आसानी से हाथ आ जाए, इसे जुआ और कुमार भी कहते हैं। जुए की मारूफ किस्म तो शरन और कानूनन हराम है और जवारी को किसी भी मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ शख्स नहीं समझा जाता, मगर मौजूदा दौर में जुए की कई नई अक़साम वजूद में आ चुकी हैं जिसमें कोई कबाहत नहीं समझी जाती और बाज़ किस्मों को हुकूमत की सरपरस्ती भी हासिल होती है। ये नई शक्लें भी तमाम की तमाम हराम हैं। मसलन लॉटरी, मुइम्माबाजी, रेफल टिकट, इनामी बॉन्ड्स, रेस कोर्स और बीमा की बहुत सी शक्लें। इसी तरह चौसर और शतरंज वगैरह भी जुए ही की किस्में हैं। अब वो जो जुआ था, जो टिपिकल जुआ था, उसको तो सारे लोग ही बुरा समझते हैं, लेकिन ये जो जदीद किस्में हैं इनकी कबाहत लोगों के दिलों में नहीं है और बहुत सी किस्में ऐसी हैं जिन्हें हुकूमत भी लीगली जायज करार देती है, बल्कि उसको सरपरस्ती देती है। लेकिन हुकूमत के सरपरस्ती देने से जुआ जायज नहीं हो जाता और मैंने वो आपके सामने वजाहत कर दी। लॉटरी, रेफल टिकट, मुइम्माबाजी, इनामी बॉन्ड्स, इसी तरह आपने देखा होगा लग जाती है सेल। जो शख्स 5,000 का की फरोख्त कर ले उसे एक कॉपन मिलेगा और उस कॉपन के बाद फिर कुरा अंदाजी होगी या उसी को कुरा अंदाजी पर आपको एक हीरे का सेट मिल जाएगा। ये सब जुए की जदीद शक्लें हैं और बीमे की शक्लें, रेस कोर्स की शक्लें भी इसी में शामिल हैं। शतरंज और चौसर भी जुए ही की किस्में हैं। और वल अंसा, ऐसे मुकामात जिन्हें किसी शिरकिया अकीदा की बिना पर अवाम में तकद्दुस का दर्जा हासिल हो और वहां नजरें और न्याजें चढ़ाई जाती हों, जैसे हमारे यहाँ दरबार, मिजार और बस ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे अगरचे दरबार और कब्रें तो नहीं होती, लेकिन वहां भी किसी शिरकिया अकीदे की बिना पर उसे अवाम में तकद्दुस का दर्जा हासिल होता है। इसमें मरकजी किरदार चूंकि किसी पीर फकीर या उसकी रूह का होता है, लिहाजा ये चीजें भी इन जगहों पर जो नजरें न्याजें चढ़ाई जाएं वो भी तमाम हराम है। इसके अलावा मुजस्मे और जानदार अशिया की तस्वीर कशी भी हराम करार दे दी गई, बिलखसूस ऐसे इंसानों की तस्वीरें जिन्हें दीनी या दुनियावी लिहाज से मुआशरे में कोई मुकाम हासिल हुआ हो, क्योंकि इसी से हीरो वर्शिप की बुनियाद बनती है और ये हीरो वर्शिप ही आगे चलकर शिरक की बुनियाद बन जाती है। और तीर, ये मैंने आपको कल भी बताया था, अरब लोग जुए के तीर मुकद्दस मुकामात पे रख देते थे। अब बैतुल्लाह में भी इनके जुए के तीर पड़े होते थे। ये इनका ख्याल ये था कि इनको वहां पे रूहानी तकद्दुस हासिल हो जाता और ये उन तीरों को निकालते थे और उनको निकाल के उनको इस्तेमाल कर लेते थे और उसे बड़ा नेक काम समझते थे। तो ये तमाम चीजें शैतानी अमल हैं, नापाक अमल हैं, इनसे बच जाओ ताकि तुम फलाह पाओ।
यकीनन शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दे शराब और जुए के सिलसिले में, और तुम्हें अल्लाह के रास्ते से रोक दे। इंसान जब शराब पी लेता है उसकी मत मारी जाती है, अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है और वो मुंह से गलत सलत बातें निकाल देता है, उसे अपने अमाल की होश नहीं रहती। इसी तरह जुआ का मामला बाज़ों का शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हारा हुआ फकीर जब अपना मालो दौलत बाज़ औक़ात अपनी औलाद तक जुए में हार बैठता है तो दुनिया अंधेर हो जाती है, और अब उसमें जो अदावत पड़ती है वो दीवाना वार उस शख्स को जिसने उसका माल जीत लिया है उसको कत्ल करने के दरपे हो जाता है। ये तो शराब और जुए के ज़ाहिरी असरात थे, और इनके जो रूहानी असरात हैं वो ये हैं कि शराब और जुआ इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। तो शैतान चाहता है कि जुए और शराब के सिलसिले में तुम्हारे अंदर अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और तुम्हें नमाज से रोक दे। तो क्या तुम इन चीजों से बाज आओगे? जुए और शराब से लाज़मन बाज आएंगे। जब ये आयत उतरी तो सहाबा ने फौरन जवाब दिया, इंतहाई ना, अल्लाह हम बाज आ गए। और हदीस में आता है, अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं अबू तलहा के घर में शराब पिला रहा था, लोग शराब पी रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिदी इस आयत को बताने के लिए उसकी आवाज जब कानों में पड़ी तो उसी वक्त लोगों ने जाम जो मुंह के साथ लगे हुए थे वो मुंह से हटा लिए। अल्फाज उनके क्या थे? इंतहाई ना, अल्लाह हम बाज आ गए। और फिर उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये शराब जो हमने मुंह तक लगाई हुई है हम इसे ही पी लें, वो गिलास ही कम से कम वो साखिर ही पूरा कर लें जिसको हमने भर लिया है। नहीं, बल्कि शराब मदीने की गलियों में बही। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही अपनी अताअत करने का जज्बा नसीब फरमाए। रोजाना अल्लाह के अहकामात सुनते हैं, अल्लाह ताला हमें हमारे सीने खोल दे, हमारे दिल इस तरह के नरम कर दे कि अल्लाह की आयत सीधी उनके अंदर उतर आए, और हम जैसे सहाबा ने कहा था इंतहाई ना, अल्लाह हम बाज आ गए, हम भी कहें अल्लाह हम बाज आ गए, और वाकई बाज आ भी है। लेकिन उसके लिए एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी, कम से कम जबान से जरूर कहा करें, समेना व तवाना, अल्लाह हमने सुना, हमने फरमा बरदारी की, अल्लाह हमने नियत कर ली, अल्लाह तू हमें तौफीक दे दे, अल्लाह तू हमें तौफीक दे दे। तो लिहाजा जब भी ऐसे अहकामात सुने कम से कम जबान से ये अल्फाज जरूर दोहराया करें, और कम से कम दिल में नियत किया करें, ताकि अल्लाह को कल को हम गवाही दे सकें, मेरे आका मैंने तेरी बात सुनी थी, मैंने आका उसी वक्त नियत कर ली थी। और फिर जब इंसान नियत कर लेता है अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल हो जाती है। अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम फिर जाओगे तो तुम जान लो हमारे रसूल पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना ही लाजमी है। उन लोगों पर जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, कोई गुनाह नहीं, जो वो खा लें जब वो तकवा रखें और ईमान लाएं और नेक अमल करें, फिर वो अल्लाह से डरें, फिर ईमान लाएं, फिर तकवा रखें और नेकी करें। ये आयत तब नाजिल हुई जब सहाबा ने ये सवाल किया कि या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, हमारे उन अमाल का क्या बनेगा जो हमने शराब पीने की हालत में किए थे। जाहिर है तब तक शराब की हुर्मत का हुक्म ही ना आया था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आयत उतार दी कि उस वक्त जो तुमने अमल किए थे वो अमल इंशाअल्लाह जाया नहीं जाएंगे, लेकिन अब तुम्हें अल्लाह से तकवा रखना चाहिए और नेक अमल करते रहना चाहिए। फिर वो तकवा रखें और ईमान लाएं, फिर तकवा रखें और नेकी करें, और अल्लाह ताला तो नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला तुम्हें जरूर किसी शिकार के साथ आजमाएगा जिसको तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंचेंगे, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करे कि उससे गैब के साथ कौन डरता है। जब मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए गए तो रास्ते में शिकार की बड़ी अफराद थी, बड़ी ज्यादती थी, और मुसलमानों की खुराक के लिए इसकी जरूरत भी थी। यहाँ तक कि बाज जानवर और परिंदे सहाबा के खेमों के अंदर घुस आते थे। और आपको पता है उस वक्त मुसलमानों ने एहराम पहने हुए थे, और एहराम की हालत में शिकार हराम है। तो मुसलमान इस आजमाइश में पूरे उतरे, जबकि बनी इसराइल समंदर के किनारे बसने वाले माहीगीर
ऐसे इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हुए थे और इसी की पादाश में फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर जलील बना के रख दिया था, इबरत बना दिया था, ताकि अल्लाह जान ले उससे बिन देखे कौन डरता है। जो इसके बाद भी ज्यादती करे तो उसके लिए तो दर्दनाक अजाब है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, शराब को शिकार को इस हाल में कत्ल न करो जबकि तुम एहराम की हालत में हो, और अगर कोई उसको जानबूझकर तुम में से शिकार कर लेता है तो बदला होगा वैसा ही जानवर जो उसने शिकार किया है। इसका फैसला दो इंसाफ वाले तुम में से करेंगे। ये कुर्बानी होगी जो काबे तक पहुंचेगी, या मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, या इसके बराबर रोजे रखने होंगे ताकि वो अपने काम का अंजाम चख ले। अब एहराम की हालत में शिकार करना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर कोई शख्स शिकार कर ले तो उसको जो जानवर उसने शिकार किया है उस जानवर की जानवर जैसा जानवर कफारे में देना होगा। फर्ज किया उसने एक हिरन शिकार कर लिया है, उसने एक गाय शिकार कर ली है, तो उतने ही वजन की और उतने ही साइज की गाय उसको कफारे के तौर पर देनी होगी। और इसका फैसला दो इंसाफ वाले करेंगे कि ये जानवर शिकारशुदा जानवर के बराबर का है, वैसी ही उसकी मालियत और कीमत है, और ये उसे कुर्बानी करनी होगी जो काबे को पहुंचेगी। हदूद हरम में वो ये जानवर कुर्बान करेगा। किस चीज का कफारा? जो उसने शिकार किया है एहराम की हालत में, या फिर उस जानवर की कीमत के बराबर मिस्कीनों को वो खाना खिलाएगा, या उसकी कीमत के बराबर रोजे रखेगा। उतनी कीमत में जितने रोजे रखे जा सकते थे। आपको पता है एक रोजे का फिदिया जो होता है वो 1 सा गंदम होता है। आजकल के दौर में तकरीबन 80 रुपए, 100 रुपया कर लें एहतियातन तो ज्यादा बेहतर है। तो या उसकी कीमत के बराबर वो रोजे रखे, और ये रोजे ढेर सारे बन जाएंगे अगर उसने कोई बड़ा जानवर शिकार कर लिया हो। और ये अल्लाह ताला ने कफारा इसलिए रखा है ताकि वो शख्स अपने काम का मजा चखे, उसे पता चल जाए कि एहराम की हालत में शिकार करना किस हद तक बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने माफ कर दिया जो गुजर चुका, और जो दोबारा करेगा तो अल्लाह ताला उससे इंतकाम लेके रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो जबरदस्त और इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल कर दिया, और उसका खाना भी तुम्हारे लिए फायदा है और काफला वालों के लिए भी, और तुम पर खुश्की का शिकार हराम कर दिया जब तक कि तुम एहराम की हालत में हो। इस्लाम एक बड़ा प्रैक्टिकल दीन है। खुश्की की हालत में, एहराम की हालत में शिकार हराम है। आप पढ़ चुके हैं पीछे कि अगर शिकार कर लिया तो वैसा ही जानवर कफारे के तौर पर कुर्बान करना होगा। लेकिन जो समंदर का शिकार है एहराम की हालत में भी जायज है, क्योंकि समंदर में जब आप जा रहे होते हो एहराम पहन के, ऊपर अल्लाह होता है और नीचे पानी होता है, कोई आपके पास रिज़्क का वसीला नहीं होता। लेकिन खुश्की में आपके पास शिकार के अलावा भी रिज़्क के वसीले होते हैं। आप चाहें तो जंगली दरख्तों के फल खा सकते हैं, जानवरों के दूध पी सकते हैं, या कोई और खुराक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा जो समंदर का शिकार है वो इंसान न सिर्फ अपने लिए कर सकता है बल्कि अपने काफले वालों के लिए भी वो ला सकता है। ढेर शिकार कर लाए, खुद भी खाए, अपने ग्रुप को भी साथ खिला दे। और अल्लाह से तकवा रखो, वो अल्लाह जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। आपने कुरान का अंदाज देखा, इंसान को डराना होता है तो क्या अल्लाह ताला कहते हैं, जिसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो खुद भी जब कोई बुराई का काम से किसी बुराई के काम से बचने का इरादा करें तो जहन में सोच लिया करें, मुझे कल को इसका अल्लाह को जवाब देना होगा, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, मैं कल को इसका क्या जवाब दूंगी। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को, अपने काबा को हुर्मत वाला घर बनाया, वो लोगों के लिए बाइसे कयाम है, और हुर्मत वाला महीना और कुर्बानी और पटे वाले जानवरों को भी अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला बनाया। ये इसलिए है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला जानता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। जान लो अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है अगर हुर्मत के सिलसिले में बेपरवाही करोगे। बैतुल्लाह की हुर्मत के किसी भी हवाले से
याद रखो अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला भी है। ये दोनों बातें एट ए टाइम अल्लाह की सिफात में से हैं। अल्लाह सरकश लोगों के लिए सख्त अजाब देने वाला है और अल्लाह बख्शिश मांगने वालों के लिए, आजिज़ी करने वालों के लिए, अपनी इस्लाह करने वालों के लिए, तौबा करने वालों के लिए बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला है। रसूल पर तो सिर्फ पहुंचा देना ही लाजिम है और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। ए नबी फरमा दीजिए, नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, और अगर तुम्हें नापाकी की कसरत अच्छी ही क्यों ना लगे, पाक पाक है, नापाक नापाक है। अगर नापाक कसरत में हो जाए तो हम इंसान उससे मानूस होने लग जाता है, लेकिन अगर इंसान नापाक चीज से मानूस हो जाए और उसे वो चीज बुरी न लगे तो उससे वो चीज जो है वो हलाल नहीं हो जाती, हराम ही रहती है, वो नेकी नहीं बन जाती, गुनाह ही रहती है। मिसाल आपको दे देती हूँ, नाचना गाना हमारे लिए हराम था, लेकिन आज टीवी ने, उसकी कसरत ने उसे हमारे लिए मानूस बना दिया। बेपर्दगी हराम थी, आज बेपर्दगी की कसरत ने उसे हमारे लिए मानूस बना दिया। लेकिन क्या अगर किसी जुर्म की कसरत हो जाए और हम उससे मानूस हो जाएं तो क्या वो जुर्म नहीं रहता, वो हलाल हो जाता है? नहीं, हराम ही रहता है। और अल्लाह से डरते रहो ए अकल वालो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ए लोगों जो ईमान लाए हो, उन चीजों के बारे में सवाल न करो अगर तुम्हारे सामने वो जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम उनके बारे में तब सवाल करो जब कुरान नाजिल हो रहा हो तो वो तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाएंगी। सहाबा को हुक्म दिया जाता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सवाल न करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी बात का जाहिर कर दी जाती है जो इंसान को अच्छी नहीं लगती। मिसाल के तौर पे हदीस में आता है कि एक शख्स ने पूछा, मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया वो दोज़ख में। आप देखें उस शख्स को अच्छा लगा, बुखारी की हदीस है। इसी तरह एक शख्स अकरा बिन हाबिस ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हज हर साल फर्ज है? आप चुप रहे। अकरा ने ये बात दोबारा का सवाल किया, आपने फरमाया नहीं, और ये भी फरमाया अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल वाजिब हो जाता। तो सहाबा को इसलिए यही हदायत की जाती थी कि वो ज्यादा सवाल न करें, और सहाबा खुद कहते हैं हम इंतजार करते रहते थे कि कोई और शख्स सवाल करे और हमें अपने सवाल का जवाब मिल जाए। अल्लाह ताला ने इसको माफ कर दिया, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। एक कौम ने इससे कबल ऐसे सवाल किए थे और फिर वो इसकी वजह से कुफर में मुब्तला हो गए। आपको पता, गाय के सिलसिले में बनी इसराइल ने सवाल किए थे और फिर कितनी आजमाइशें उनको सहनी पड़ी गाय के सिलसिले में, वरना अगर वो सवालात न करते तो शायद एक ही दफा जब उन्होंने हुक्म दिया गया था आम गाय ज़िबा कर लेते तो उनके लिए काफी होता। अल्लाह ताला ने ना तो कोई बहीरा बनाया, ना साहिबा बनाया, ना वसीला बनाया और ना ही हाम बनाया। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, बहीरा दूध देने वाला जानवर है जिसका दूध बुतों के नाम पे रोक दिया जाए, उसे बुतों के नाम पे रोक दिया जाए। बिल्कुल वैसी सूरत जैसे हमारे यहाँ 11वीं वाले दिन दूध सारे का सारा बाजार में मार्केट में फरोख्त के लिए नहीं आता, वो दरबार पे चला जाता है। नऊज़ुबिल्लाह। मैं उसे दाता दरबार भी नहीं कहती, क्योंकि दाता सिर्फ अल्लाह है, ये कहना भी शिर्क है। तो बहीरा वो दूध देने वाला जानवर है जिसका दूध बुतों के नाम पे रोक दिया जाए और कि कोई उसका दूध ना दोहे। साहिबा वो जानवर है जिसे बुतों के नाम पर छोड़ देते, इस पर ना तो कोई बोझ लाता ना सवारी करता। वसीला ये जानवर नर होता, वसीला वो ऊंटनी होती जो पहली बार भी मादा जने और दूसरी बार भी मादा जने, ऐसी ऊंटनी को भी वो बुतों के नाम पे छोड़ देते थे। हाम वो नर ऊंट था जिसके नुतफा से 10 बच्चे पैदा हो चुके हों, ऐसे ऊंट को भी बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता था। तो अल्लाह ताला ने ना तो बहीरा बनाया, ना साहिबा बनाया, ना वसीला बनाया और ना हाम बनाया। और वैसे भी एक बड़ी समझदारी की बात यह है कि ये सारे जानवरों को का खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो अल्लाह ही हक रखता है कि अगर किसी जानवर को ज़िबा किया जाए या किसी जानवर का दूध
बतौर सदका दिया जाए तो वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो। तो अल्लाह ताला ने न तो बहीरा बनाया, न साहिबा बनाया, न वसीला और न हाम बनाया। हाँ, वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो अल्लाह पे झूठ गढ़ते हैं कि वो ये कहते हैं कि ऐसा करें तो अल्लाह राजी होता है। शिरक से अल्लाह कैसे राजी हो सकता है? ये शिरक फिल इबादत है। कौन सी इबादत? माली इबादत में शिरक है। और उनके अक्सर अकल नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है उस चीज की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल की और रसूल के अहकामात को मानो, तो वो कहते हैं हमें काफी है जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को पाया। अगरचे इनके आबा अजदाद कुछ भी ना जानते हों और हदायत याफ्ता भी ना हो, तो तब भी तुम उन्हीं की पैरवी करोगे। तकलीद आबा भी शिर्क की एक किस्म है, क्योंकि ऐसी सूरत में अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुकाबले में आबा के दीन को तरजीह दी जाती है। और इसकी हकीकत ये है कि हर शख्स फितरतन अपने बुजुर्गों से चूंकि मोहब्बत और अकीदत रखता है और वो इस बिना पर समझता है कि हमारे बुजुर्ग बड़े नेक थे और बड़े दीन को समझने वाले थे। हालांकि साफ सीधी बात है कि बाप भी और आबा अजदाद भी गलती कर सकते हैं। वो भी दीन के बारे में उनका फहम बिल्कुल मुमकिन है कि दुरुस्त ना हो। तो असल दीन की बुनियाद कहाँ से मिलती है? कुरान और हदीस से, अल्लाह और उसके रसूल से। तो वालिदैन को या अपने आबा अजदाद की पैरवी करना, ये भी अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में उनको शरीक ठहराना है। क्या अगर इनके बाप कुछ भी न जानते हों और सीधा रास्ता भी ना पाते हों, तो तब भी तुम उनकी पैरवी करोगे? ऐ लोगो ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जाने हैं। तुम्हें वो शख्स नुकसान न पहुंचाए जो गुमराह हो गया जब तुमने हदायत पा ली। यानी सबसे पहले तुम्हें अपने नफ्स की इस्लाह करनी चाहिए। ये न देखना चाहिए दूसरा क्या कर रहा है, बल्कि अपने अकायद, अपने किरदार, अखलाक, आमाल की इस्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में करनी चाहिए। इस्लाह की तमाम तहरीकों के नाकाम होने की वजह यह है कि हम अपनी इस्लाह तो करना नहीं चाहते, हम दूसरे की इस्लाह करना चाहते हैं। हालांकि इस्लाह का हकदार सबसे पहले हमारा अपना नफ्स है। सबसे पहले अपने नफ्स की इस्लाह करें, उसके बाद अपने घर की इस्लाह करें, उसके बाद अपने खानदान वालों की इस्लाह करें, उसके बाद फिर किसी और की बारी आती है। ये बड़ा फित्री दायरा कार है जो कि हमें इख्तियार करना चाहिए। ऐ लोगो ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर लाजिम है तुम्हारी अपनी जाने। तुम्हें वो शख्स नुकसान न पहुंचाए जो गुमराह हो गया जब तुमने हदायत पा ली। तुमने सबने अल्लाह की तरफ लौट जाना है तो वो तुम्हें खबर देगा जो तुम अमल किया करते थे। ऐ लोगो ईमान वालो, तुम में से अगर किसी को मौत आ जाए तो वसीयत के वक्त वो मुसलमानों में से 2 अदल वालों को गवाह बना ले। अगर तुम हालते सफर में हो और तुम्हें मौत आ ले तो तुम 2 गैर मुस्लिमों को भी गवाह बना सकते हो। अगर तुम्हें कुछ शक पड़ जाए तो फिर इन दोनों को नमाज के बाद मस्जिद में रोक लो और वो अल्लाह की कसम उठाकर कहें कि हम गवाही को बेचने वाले नहीं हैं, खा वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और हम अल्लाह की खातिर गवाही को नहीं छुपाएंगे। और हम अगर ऐसा करें तो हम मुजरिम होंगे। और अगर ये पता चल जाए कि वो दोनों गुनाह में मुलव्वस होकर हक बात को दबा गए हैं तो उनकी जगह पर 2 गवाह और खड़े हों जो पहले दोनों गवाहों से ज्यादा अहल हों और उन लोगों की तरफ से हों जिनकी हक तलफी हुई है, वो भी अल्लाह की कसमें खाएं और कहें कि हमारी गवाही इन पहले गवाहों की गवाही से ज्यादा सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। अगर हमने ऐसा किया तो बिलाशुबा हम जालिम हैं। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि बनु सहम कबीले का एक शख्स तमीम दारी और अदी के साथ सफर पर निकला। ये बनु सहम का आदमी एक ऐसी जगह मर गया जहां कोई मुसलमान न था। तमीम दारी और अदी उसका तरका लेकर आए। उसने जाहिर अपनी विरासत अपने साथियों को तमीमदारी और अदी को दे दी और उन्हें कहा कि तुम मेरे वारिसों को ये दे देना। तो इस शख्स के वारिसों ने इसमें एक प्याला ना पाया जो कि चांदी का था और सोने से मुरस्सा था। असल में हुआ यूं था कि इस शख्स ने उन 2 अशखास की नजर बचाकर अपने सामान में एक लिस्ट रख दी थी और जब उसके वारिसों ने वो लिस्ट चेक की तो उसके मुताबिक उसमें एक चांदी का प्याला जिस पर सोने का काम किया हुआ था वो ना पाया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम और अदी से कसम खाने को कहा। वो कसम खा गए कि प्याला उनके पास नहीं। बाद में वो प्याला मक्का के बाजार से मिल गया और जब पता किया गया तो पता चला कि उसे उन्हीं दो लोगों ने बाजार में फरोख्त किया था। अब उस शख्स के वारसों में से दो शख्स खड़े हुए और अल्लाह की कसम खाकर गवाही दी कि ये प्याला हमारे ही आदमी का है और हमारी गवाही इन दोनों से ज्यादा सच्ची है। ये आयत इसी सिलसिले में नाजिल हुई, बुखारी की हदीस है। ये ज्यादा करीब है कि वो गवाही को उसके सामने लाएं या वो डरे कि उनकी कस्में लौटा दी जाएंगी दूसरी कस्मों से। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि कोई ऐनी गवाह भी मौजूद नहीं है, शरीयत ने यह तरीका हमें दिया कि वो दो गवाह जो हैं वो मस्जिद में लोगों के सामने कस्में खाएं, और अगर वारिसान को ये ख्याल हो कि इन्होंने गलत कस्में खाई हैं तो वो भी कस्में खाएं और वो भी साथ कहें कि हमारी गवाही इनकी गवाही से ज्यादा सच्ची है। अब पहले जो गवाह हैं अगर वो गलत कस्में खाएंगे तो उन्हें डर होगा कि हमारी कस्मों की तरदीद वारिसान की कस्मों से हो जाएगी, लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि वो सही गवाही दें। वैसे भी मस्जिद में ये सारे जो गवाही देने का सिस्टम किया गया है वो ये है कि इंसान जैसा भी है इबादत गाहों में अल्लाह का तसव्वुर तो इंसान की निगाह के सामने होता ही है। ये ज्यादा करीब है कि वो गवाही को ठीक ठीक गवाही दें या इस बात से डर जाएं कहीं इनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से इनकी तरदीद ना हो जाए, और अल्लाह से तकवा रखो और उसके अहकामात ध्यान से सुनो। और अल्लाह ताला तो फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा करेगा तो रसूलों से कहेगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया था। ये हम पीछे भी बहुत दफा पढ़ चुके हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने रसूलों से पूछना है, बताओ तुमने अपनी उम्मतों को मेरा पैगाम ठीक ठीक पहुंचा दिया था और उन्होंने आगे से क्या रिस्पांस दिया था। वो कहेंगे अल्लाह हमें तो कोई इल्म नहीं, तू ही गैब को जानने वाला है। और जब अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम से कहेंगे मेरी नेमत को याद करो जो तुझ पर थी और तेरी वालदा पर थी, जब मैंने तुझे रूहुल कुदूस के साथ तेरी मदद की थी, तू लोगों से जूले में और बड़ी उम्र में बात करता था, और जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत सिखाई थी, तौरात और इंजील सिखाई थी, और जब तू मट्टी से परिंदा बना लेता था मेरे हुक्म से तो तू उसमें फूंक मारता था तो वो सचमुच का परिंदा मेरे हुक्म से बन जाता था, और तू तंदुरुस्त कर देता था मादरजाद अंधे को और फुल बहरी वाले को मेरे हुक्म से, और जब तुम मुर्दों को मेरे हुक्म से जिंदा कर देता था, और जब मैंने बनी इसराइल को तुझसे रोक दिया जब तो तू उनके पास निशानियां लेकर आया था, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो वाज़े जादूगर है। और जब मैंने हवारियों को वही की कि मेरे साथ भी ईमान लाओ और मेरे रसूल के साथ भी ईमान लाओ, तो वो कहने लगे हम ईमान लाए और अल्लाह तू भी गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। और जब हवारियों ने कहा ए ईसा इब्ने मरियम क्या तेरा रब इस बात की ताकत रखता है कि हमारे ऊपर आसमान से एक दस्तरखान उतार दे, हजरत ईसा ने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला से ऐसे मुतालबे करना अल्लाह ताला की शान के खिलाफ है। अल्लाह से शर्तें बांधना कि अल्लाह अगर तू हमारे ऊपर दस्तरखान नाजिल करेगा तो हम तेरी इबादत करेंगे, ये अबूदियत के खिलाफ है। और वैसे भी जो कौम अल्लाह ताला से इस तरह के मुतालबे करती है तो अल्लाह ताला उनके मुतालबे पूरे कर देता है, और उसके बाद भी वो ईमान नहीं लाती तो फिर बड़ा सख्त अजाब होता है। आपको पता है कौम समूद ने भी मुतालबा किया था, ये सामने वाला पहाड़ फटे और उसमें से एक हामला ऊँटनी निकले और हमारे सामने बच्चा जने तब हम ईमान लाएंगे। अल्लाह ने मोइज़ा दिखा दिया, लेकिन समूद ने ईमान लाने की बजाय सरकशी इख्तियार की और ऊँटनी को भी हिला कर डाला, तो उन पर सख्त किस्म का ज़लज़ला आया और सख्त किस्म की करख्त आवाज पैदा हो गई जिससे सब के सब तबाह हो गए। तो इसी तरह हजरत ईसा ने इनको रोका
اور کہا اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ وہ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں ہم اس سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ تم سچے ہو اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ انہوں نے 3 وجوہات بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم فکر معاش کے دندوں سے آزاد ہو کر اللہ کی عبادت، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ اور تیسری بات، جس دن اس دسترخوان کا نزول ہو ہم اس دن کو خوشی اور جشن اور عید منائیں اور آئندہ بھی ہم اس دن کو عید ہی مناتے رہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نے انہیں روکا، بعد میں حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے، اور اللہ تیری طرف سے معجزہ بھی ہو اور تو ہمیں رزق دے اور تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو تم پر اتار تو دوں گا، لیکن یاد رکھو جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جیسا میں نے جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب دوں گا۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا اس میں روٹی اور گوشت تھا، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے، پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کیا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دسترخوان صرف ایک دن نہیں بلکہ کچھ عرصہ تک نازل ہوتا رہا۔ مطالبہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ اس دسترخوان سے غریب، نادار، معذور لوگ کھایا کریں گے، مگر بعد میں کھاتے پیتے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، یہ ان کی خیانت تھی، لہٰذا اس کے علاوہ انہوں نے کل کے لیے ذخیرہ بھی کرنا شروع کر دیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ دیگر بھی کئی نافرمانیاں کی جن کی پاداش میں 80 کے قریب آدمیوں کی صورتیں مسخ کر کے سور کی، بندر اور سور کی بنا دی گئی۔ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء نے اس واقعے سے اختلاف کیا ہے، لیکن قرآن کے انداز سے ایسی ہی اس کی تائید ہوتی ہے، باقی واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح